Welcome everyone. So, my name is Monica, and we are here today in this session just to share our challenges, just to reflect upon it, and maybe find a deeper understanding through our challenges. So, we all as human beings, we have ups and downs in our lives, and many a times we are burdened with some emotional and mental conflicts, and we don't really know where to share, where to get more clarity, whom do I share it with, who would be able to kind of maybe shed some light. So this collective space is a space for sharing our challenges, where when we share anything that we are going through, and if we want a resolution, so this is not for people who are not wanting any resolution, because otherwise why will I be here, right? So this is for those of us where we have challenges in life, and we want to have a resolution or a way of clarity through those challenges. And so you are most welcome. All of us are most welcome to share our challenges here. And then through invocation of questions, through invocation of reflections, we can maybe find a deeper understanding through the same challenge, right? Maybe more light is being shed on the same challenge. Some of us may decide not to speak. That is also okay. Some of us may be here only for listening to others sharing. But if you can push yourself to share, that would be really nice, because unless we bring out our the darkness that I am dealing with, the light does not reach that nook and corner. So it would be nice if there is anything on your mind, and if you want to share it in this space, it would be nice to go through that little hesitation, little discomfort, and allow yourself to share here. Otherwise we just keep on carrying that load in our chest. We're not being able to share with anyone, even our close family and relatives. We are not able to share. So allow yourself to share, and only then we can see if there is a way through that burden, or is that burden really required. The other thing that I want to share is that sometimes, or most of the times, we make external things or situations or people more important than our own sanity, right? So my job becomes more important than my sanity, my kids become more important than my sanity, my relationships become really too much, my duties, obligations become too much for me, that I feel that I have no choice, I have to exert myself. So this is also a invocation here, that the most important thing on this earth, although it's just a grain of dust, is you. The most important thing in your life is you. Nothing in my life deserves that kind of importance which I give it. It may be my child, it may be my family, it may be my work, finances, anything, right? My past. Nothing in my life deserves so much priority that I lose my sanity for that. Yeah. So uh, yeah, with that, if there is anything, Taru, you want to add, and then we can open the space for sharing. Not really. I think you've covered it all, but I really loved how you had put it that the most important thing is you, even though knowing that you're a grain of sand, like just keeping both things in mind is really, I think, cuts it. Otherwise, if we go in either direction, if you're nothing, then, you get into depression. If you're everything, you get into that, I don't know, egoism, right? But remembering that you have to be loved by yourself and yet you are nothing is the way you put it was very beautiful. Thank you. So, for those of us who have joined later, I'll just shortly share that it is a sharing space where we can share the challenges that we are going through. We can share whatever burden we have right now. Maybe we are mentally, emotionally wanting to resolve something. So, it's a safe space to share that burden, and we can have lots of spaces of silence in between. We are allowed to take that space. So allow yourself to share, allow yourself to hesitate, even then share. Because if I do not share, and I am just kind of struggling with that conflict,
even coming to this session will not be that fruitful. So please allow yourself to share. This is our, all of us, this is our space, sharing space, and we can take it in any direction that we like. Yeah. Can So I share something? please, yeah. Yeah. That's. Um, uh, Hi. Is it okay if I switch off the video, please? Because I'm not What, comfortable. whatever you are Uh, comfortable with. I feel that while switching on the video, people see me, so that by this way I cannot express what I want to say. So you So can switch it off. yeah, Switch it. thank you so much. Yeah. First of all, thanks that you guys uh, allowed people like me to express our feelings. The thing is, I was looking for this from past many years, that I needed some people or a single person to whom I can share what I feel, what I want to. But the thing is, there was no one from past many years. You can think that uh, how it could be no one to whom I cannot share something what I want to. The thing is, I am totally handicapped person. I cannot walk completely. The thing is, I crawl and I do the work of my own. That too from past 21 years. Um, the thing is, I'm not here today to get any solutions for my problems. या मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ कि यार ठीक है कुछ पॉजिटिव लोग मिलेंगे तो मेरे को मेरे प्रॉब्लम से कुछ छुटकारा देने के लिए कुछ टिप्स ट्रिक्स या कुछ आइडियाज बता देंगे ताकि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो, ये नहीं है. द थिंग इज, मुझे बस मेरी बातें कहनी थी. कोई कोई था नहीं किसी को कुछ कहने के लिए. तो जो भी मेरे आसपास लोग होते हैं, लोग तो मतलब ऐसा हो गया कि यार लोग उन्हें कहते हैं जो बहुत सारे पीपल मिलते हैं तब, या पर्सन मिलते हैं तब. मेरे आसपास जितने भी मेंबर है वो गिने चुने मेंबर है, एक दो मेंबर्स या तीन चार मेंबर्स ही होंगे. बट उनमें से ऐसा कोई नहीं है जिनसे मैं बात शेयर कर सकूं. और अगर मैं ट्राई भी करूं उनसे शेयर करने का, तो मेरे को पता है सब कुछ वेन में जाएगा. दे विल जस्ट कंसोल मी, ओके एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, जस्ट मूव ऑन. ऐसा है. द थिंग इज, मेरे को प्रॉब्लम्स बहुत है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. बस मैं मुझे वो बस कहना है, मुझे आपसे या आप किसी से भी कुछ ऐसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए कि नहीं डोंट वरी हम हैं आपके साथ ऐसा कुछ. द थिंग इज, मुझे बस बतानी है मेरी प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स ये है कि यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पिछले यही है कि पिछले 21 साल से मैं चल नहीं सकता हूँ. जब मैं 9 साल का था तब से मेरा चलना बंद हो गया था. उससे पहले मैं बहुत चलता था, भागता था, सब कुछ करता था. बट 9 साल की उम्र के बाद मैं बिल्कुल चलना बंद हो गया मेरा. द थिंग इज, फिर मुझे डिपेंड होना पड़ा. डिपेंड होना पड़ा मतलब उस टाइम पे मेरे को इतनी कोई समझ ही नहीं थी कि भाई मुझे डिपेंड होना पड़ेगा मेरे सारे काम काज के लिए. इवन मेरे प्राइवेट काम के, प्राइवेट वर्क हो, चाहे कोई भी प्राइवेट वर्क हो, उसके लिए भी मुझे डिपेंड होना पड़ता था. तो जैसे जैसे एज बीतता गया तो फाइन ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आना आते गया कि भाई कितना डिफिकल्ट होता है हर एक काम के लिए दूसरों पे डिपेंड होना. यू you नो know, कि एक जब बचपन में एक एहसास होता है कि हमारा काम कोई और कर दे तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम काम से बचना चाहते हैं. द थिंग इज, जब से मैं चलना बंद हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे को यही चीज खटकने लगी कि मेरे काम दूसरों को करना पड़ रहा है. मेरा छोटा सा छोटा प्राइवेट काम भी दूसरों को करना पड़ता है, तो उसमें शर्म कितनी आती है मेरे को. उसके साथ साथ दूसरों को कितनी तकलीफ देनी पड़ती है. तो सबसे पहला मेरा बैकलॉग यही है कि मैं चल नहीं सकता, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स आते गए आते गए आते गए. फॉर एग्जाम्पल, मेरे डैड भी गुजर गए कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले सॉरी, कुछ सालों पहले मेरे डैड गुजर गए. और मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरी मॉम और मेरी सिस्टर रहती थी. और मेरी सिस्टर की भी शादी हो गई एंड शी आल्सो मूव टू सम अदर एरियाज. रहती तो सिटी में ही है बट रहती हमारे घर से दूर है एक्चुअली. रहती है अभी मेरे साथ, मेरी मॉम रहती है. उनको भी एलिमेंट्स बहुत है, जैसे उनको हार्ट का ब्लॉकेज है, दूसरा उनका आर्थराइटिस है, और तीसरा तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत वहम करती है. यू नो ना वहम क्या होता है, कि मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा. तो द थिंग इज, मैं उनको बहुत समझाता हूँ कि कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी ऐसी है, मुझे देखो मैं कैसे काट रहा हूँ. अगर आप 2 मिनट दे पाए तो अभी भी मेरी मॉम को मुझे दवाई देनी है, तो 2 मिनट कोई रुक सकता है कोई? कैन यू गाइस वेट प्लीज? थैंक यू.
So if in the meantime Yeah, the anyone thing wants is, sorry, yeah, मुझे वेट कराना पड़ा. you are back? Okay, या fine, fine. वो क्या मेरी मॉम को दवाई देनी है तो दवाई दे के आ रहा था मैं. बस यही है, मॉम कभी मेरी बात नहीं मानती. उनको मैं बोलता हूँ देखो वहम वहम करने से कुछ नहीं होता है. मुझे देखो मैं भी 21 साल से चलता नहीं. आपकी तरह तो मैं करने बैठ गया तो फिर आपका कौन देखेगा. द थिंग इज मुझे लगता है कोई सपोर्टिव नहीं है मेरे को लेके तो. नॉट इवन माय मॉम ऑलवेज थिंक्स ऑफ हरसेल्फ कि मुझे कुछ ना हो, उनको कुछ ना हो बेसिकली. थोड़ा सा भी उनको कुछ होता है तो वो रकस क्रिएट करते हैं. इसकी वजह से मुझे और फील होता है कि व्हाई डू आई एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. कि मॉम तो है, मॉम को तो ऐसा होना चाहिए कि उन्हें समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है. मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट बेटा हूँ उनका. द थिंग इज मैंने मेरे डैड के जाने के बाद मुझे मेरी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ तो मैं ट्यूटर वगैरह ट्यूटरिंग करता हूँ. घर पे बच्चे आते हैं तो उनको पढ़ाता हूँ, वहाँ से पैसे आते हैं मेरे. फ़ाइनेंशियली भी मैं वीक ही हूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि मैं वीक हूँ, बट फिर भी मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि मुझे कुछ दो, ऐसे. मैंने जो कुछ भी किया है मैंने ट्यूटरिंग करके किया है और जो भी पैसे आते हैं ट्यूटरिंग से आते हैं. से फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 आते हैं तकरीब और हमारा खर्चा होता है, आप ले लो तकरीबन 12 से 13,000 महीने का, दवाइयाँ वगैरह सब मिला के. मुझे इस बात से भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं चल नहीं सकता. मेन प्रॉब्लम मेरा ये है कि चलने के ना कारण मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. ऊपर से कोई सपोर्टिव है नहीं और जो भी मिलता है सपोर्ट करने के लिए मिलता तो 1-2 ही है, या तो मॉम या तो मेरी सिस्टर. बट मुझे उनसे भी इतना कुछ सपोर्ट मिलता ही नहीं. उनको बस यही लगता है कि भाई ठीक है, नहीं चल रहा तो क्या हुआ, हम हैं, कुछ कर लेंगे इसके लिए. बट नहीं है ऐसा. वो लोग बात ही नहीं समझते कि नहीं चलना कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है. मुझे ऐसा लगता है कि भाई मॉम की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उन्होंने पूरे देश घूम लिया है, उन्होंने सब कुछ एन्जॉय कर लिया. बट वो क्यों नहीं समझते कि मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है. 9 साल के बाद मैं चलना ही बंद हो गया है. तो ना मैं कभी बाहर खेला, ना दोस्तों के साथ कभी रहा. मुझे जो-जो करना चाहिए था वो कुछ नहीं कर पाया. इवन द थिंग इज़ मैंने कुछ महीनों पहले कहीं पे अप्लाई किया था नौकरी के लिए, बट वहाँ से भी रिजेक्शन ये हो गया कि भाई आप चल नहीं सकते तो आपको नौकरी भी नहीं मिल सकती. ये नहीं है कि मैं कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता, मैंने बहुत सारी चीज़ें नई करने की कोशिश की है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश की, बट एवरी टाइम आई ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स ना कुछ इम्पेडिमेंट्स आ ही जाते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ ही जाते हैं. वो भी ऑब्स्टेकल्स कौन क्रिएट करता है, या तो मेरी मॉम या मेरी सिस्टर या मेरा अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो. मुझे कुछ नया सीखने भी नहीं देता सो दैट आई कैन गो फॉरवर्ड इन माय लाइफ. मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूँ. व्हेनेवर आई ट्राई टू जब भी रात होती है ना आई फील लाइक बस रात हो, कभी सुबह नहीं होनी चाहिए. सुबह कभी नहीं होना, क्योंकि सुबह होते तो वापस वही डेली रूटीन चालू हो जाता है. ये मतलब ट्यूटरिंग करो, मॉम का सब कुछ सँभालो, वहाँ पे सिस्टर भी इतनी सपोर्टिव है नहीं, तो उसका भी विक्रांत मतलब विक्रांत जी, जी, कहिए। जी, 2 मिनट रुकेंगे? जी, ज़रूर। So let's take a pause for a minute. या 1 मिनट का पॉज, श्योर, श्योर। उसके बाद शेयर समथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर शेयरिंग विक्रांत जी, जो भी आप शेयर कर रहे हैं अपने जीवन के बारे में. जी, दूसरा ये कि जीवन तो दुख है ना? जीवन तो दुख है. हम में से जो बैठे हैं आज 12 लोग हैं टोटल. 12 में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपको ये बोल पाएगा जीवन बड़ा सुख है. हम में से बहुत लोग बैठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानती हूँ, जो इतनी ज्यादा ट्रेजेडीज से गुजरे हुए हैं, इतने ज्यादा ऑलमोस्ट नियर डाइंग एक्सपीरियंसेस से गुजरे हुए हैं, काफी. नॉट इवन वन, एक या दो की बात नहीं कर रही. हुँ, ऐसे ऐसे इश्यूज से गुजरे हुए हैं कि अगर उनसे भी मैं बात करूंगी तो उनका आंसर ये नहीं होगा कि जीवन दुख नहीं है. ये नहीं बोल पाएंगे हम में से कोई भी. ठीक सही है. है। हुँ, और उनमें से कुछ जो ऊपर ऊपर से दिखने में वो ऐसे होंगे जो आपको लगेगा अरे इसने तो पूरा संसार देख लिया, फिर ये कैसे कह रहा है जीवन दुख है.
ठीक है, तो हम में से सारे लोगों ने संसार भी देख लिया कि अगर भगवान ने ये कैपेबिलिटी दी है कि चल फिर पा रहे हैं, तो संसार भी देख लिया, लेकिन तब भी कोई आपको ये नहीं बोल पाएगा कि जीवन दुख नहीं है। सबकी जीवन में कुछ ना कुछ दुख है ही। जी पहली बात तो ये गारंटी है इस चीज की, और ये गारंटी मैं सिर्फ 12 लोगों की नहीं ले रही हूँ, ये जो धरती पे जो हम बिलियंस लोग हैं उन सबकी ले रही हूँ। ठीक है, होता क्या है कि दुख अलग अलग तरीके से आता है हमारे जीवन में। किसी के जीवन में बार बार वो कोई बीमारी बन के आता है, किसी के जीवन में ऐसे आता है जैसे आप बता रहे हैं, किसी के जीवन में ऐसे आता है कि जो भी आसपास के लोग हैं वो कोई है ही नहीं, एक एक करके सब चल बसे, है ना, और उसको उसके थ्रू भी गुजरना पड़ता है। किसी को अपना बच्चे को खोना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे निकल जाते हैं, चल बसते हैं। यू हैव टू गो थ्रू दैट, राइट? इट्स वेरी हार्ड टू सी समवन डाइंग इन फ्रंट ऑफ यू हु इज वेरी लिटिल, है ना। तो दुख तो है विक्रांत, इसमें कोई दौरान नहीं है कि दुख है, लेकिन अगर सिर्फ दुख पे फोकस करेंगे तो आपके साथ जो हो रहा है वो हम सब भी फेस कर चुके हैं, जी नहीं पाएंगे। अगर सिर्फ दुख 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 का रोना रोते रहेंगे, है ना, कि दुख है क्या करूं, दुख है ना। तो हम में से जो भी हैं जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं, चल इन द सेंस फिजिकली चल नहीं, जीवन में थोड़ा बहुत जी पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसलिए कर पा रहे होंगे क्योंकि दुख के होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ ना कुछ जीवन में खोज लिया है जो अपना समय देने के लायक है ना। तो आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी कि आपके जीवन में जब आप छोटे थे या अभी की बात करें, तो अब मुझे नहीं पता कितना वो आपको याद है कि नहीं याद है, क्योंकि अभी तो सिर्फ आप दुख दुख की बात कर रहे हैं ना कि सब गड़बड़ घोटाला जी है ना। तो जरा याद अगर करने की कोशिश करें, जब विक्रांत छोटा था, जब मे बी वो चल पाता था, या उसके बाद भी मैं कहूंगी, क्योंकि वो इनहेरेंट जो आपकी इंक्लिनेशंस होती है वो मरती नहीं है कभी भी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनकी तरफ आपका खिंचाव रहा हो, इट मे बी आर्ट, इट मे बी समथिंग एल्स, जहां आपको लगता है हाँ इस फील्ड में मैं अपने आप को दे सकता हूँ, और मुझे वो काम की तरह भी नहीं लगता। कोई किसी बंदे को वो पेंटिंग हो सकती है, उसके लिए वो किसी बंदे के लिए झाड़ू लगाना हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। किसी भी तरह के काम की तरफ हमारा एक झुकाव होता है, उसे हम स्वभाव कहते हैं ना, कि हमारा झुकाव या कुछ तरीके की काम के प्रति है, और वो हमें अच्छा लगता है करना, वो हमें काम की तरह नहीं लगता, बर्डन नहीं लगता। तो वो जीवन जीने को थोड़ा इजी बनाता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैं उठना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा और समय इसको देना है। तो क्या सही ऐसा है। कुछ भी आपके जीवन में है जो आपको लगता है कि मेरा इस तरह झुकाव है? जी हाँ, द थिंग इज़ मुझे बचपन में डांस का बहुत शौक था, तो वो करता था मैं एक्चुअली, हमारा कोई पाठशाला होता है, वहाँ पे जाके मैं करता था। उसके अलावा मुझे प्रोग्रामिंग करने की बहुत इच्छा होती है, बहुत इच्छा होती है। द थिंग इज़ मैंने कहा है कि भई मैं जब भी ये चीज़ इस जिस जिस झुकाव की आप बात कर रहे हो ना, आई गेट यू कि आप उसमें वो करो, उसमें कुछ करो, क्योंकि वो आपको अच्छा भी लगता है, अट्रैक्ट भी कराता करता है और आपको शायद आगे भी लेके जाए। तो मुझे प्रोग्रामिंग का भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैंने कुछ सीखा भी नहीं है प्रोग्रामिंग का, बट करना मुझे अच्छा लगता है। मैंने स्टार्ट भी किया था बीच में। द थिंग इज़ जब भी मैं ये कुछ करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं, लोग ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं। प्राइमरली मेरी मॉम, मेरी सिस्टर ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि भाई उसमें भी अट्रैक्शन नहीं रहता फिर। ओके और ओके, वो एक एक बार हो तो ठीक है, बट वो मल्टीपल टाइम्स हो समझ चुका गई, है। समझ तो गई। जो चीज़ जो चीज़ अच्छी लगती है वो फिर कभी फिर अच्छी नहीं लगती, ऐसा फ़ील होता है। बिल्कुल और आज आप मेरे को कहोगे कि नहीं कल से आप वो स्टार्ट करो, नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हो चुका है वो कई बार। मैं हाँ, कई बार आप कहते हो स्टार्ट तो करके देखो, कर चुका हूँ मैं, कई बार कर चुका हूँ मैं। बिल्कुल तो जब भी आप कहोगे कि स्टार्ट करके तो देख, आपको वो अच्छा लगता है तो वो करके देखो, कर चुका हूँ, कोई फ़ायदा मेरे को नज़र नहीं आता उसमें। द बिल्कुल। थिंग इज़ अब मुझे बस नफ़रत सी हो जाती है उससे, करके क्या करूँ? ठीक है मुझे अच्छा लगता है बट करके क्या करूँ? किसके लिए करूँ? कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, तो करके क्या करूँ? क्योंकि उसमें फिर कंसंट्रेशन भी तो जाना चाहिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है करते हो तो, उसमें फिर कंसंट्रेशन भी नहीं रहता, बिल्कुल ये चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रही हूँ मैं बात को। देखो आपने वो देखा होगा ना, जैसे राम और रावण की जैसे लड़ाई दिखाते हैं,
है ना। दशहरे वाले दिन जैसे राम की जीत दिखाते हैं, सत्य की जीत दिखाते हैं और रावण का सर्वनाश दिखाते हैं। तो ये राम और रावण तो हम सबके अंदर ही हैं, है ना। अब आप मुझे जरा हल्का सा रिफ्लेक्ट करके बताओ कि आप में रावण क्या है और आप में राम क्या है। बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। राम ये है कि मैं मॉम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर वो कहे कि नहीं, मुझ पे चिल्लाना नहीं, मुझ पे ये नहीं कहना कि मैं गलत हूँ तो मेरे को गलत नहीं कहना। मैं जैसे चाहती हूँ वैसे करो तो मैं वैसे करता हूँ। और ये बात को मैं रियलाइज़ हुए मेरे को कुछ दिन ही हुए हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा झगड़ा हुआ है। कई बार मॉम और मेरे बीच झगड़ा हुआ है ये बात को लेके कि भाई मॉम वहम नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरों को ऐसा हुआ था, आपको ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। कई बार मैं ये समझा चुका हूँ, इस बात को लेके बहुत झगड़ा हुआ। और रिसेंटली जब झगड़ा हुआ उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मॉम जैसा कहती है वैसे करो बस, कुछ तो नहीं होगा ना। तो मैं बस अब ये कर रहा हूँ कि मैं मॉम की हर बात मानता हूँ। सिर्फ़ मॉम की नहीं, मेरी सिस्टर की भी हर बात मानता हूँ, ये नहीं करना तो ये नहीं करना, वो करो तो वो करो, वो करो तो वो करो। रावण ये है कि मुझे ये सब काम करना नहीं है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं कर रहा हूँ वो। मैं जब कहना चाहता हूँ मॉम आप ये गलत कर रहे हो, विक्रांत, तो मैं विक्रांत, वो नहीं कह सकता, वो अब नहीं हाँ, कह सकता मैं। रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। आपने मेरे को दोनों रावण वाली ही बातें बताई हैं, कोई राम नहीं मुझे दिखा इन दोनों में। आपने बोला कि मम्मी कहती हैं कि गलत काम मैं अगर कर भी रही हूं तो भी मुझे ये मत बोलना कि गलत हूं, और आप क्या कह रहे हैं, मैं करता हूं। तो ये तो रावण वाली बात लग रही है मेरे को, यहाँ पे कोई राम, आपका रामपना दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। दूसरी बात आप क्या जी, कह रहे हैं कि आप समय किन चीजों में निकाल रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते। यही बोला ना आपने, नहीं करना चाहते। और ये बात नहीं है कि नहीं करना चाहते, जो आपको ठीक नहीं लगती है। जब हमारा समय उन चीजों में जाता है जो हमें अंदर से भी पता है कि ठीक नहीं है ना, उसी को ही रावण का राम नाम दिया जाता है। अंदर से मुझे सब पता है कि सीता को उठा लेना ठीक नहीं है, लेकिन गुस्सा ऐसा है, फ्रस्ट्रेशन ऐसी है कि मैं सीता को उठा लाई। अंदर से ये पता है कि विभीषण ठीक कह रहा है, लेकिन फिर भी विभीषण को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि भैया रुतबा है मेरा कुछ। तो अंदर से पता होने के बावजूद भी जब आप उन कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेंगे जो आपको पता है ठीक नहीं है, तो आपके जीवन का ये जो अभी हश्र है जो आप बता रहे हैं, हर चीज में नीचे ही जाते जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कुछ मन नहीं करता, ये तो होना ही होना है ना। सोच के देखो ना, अभी कोई आंसर मत देना। तुम्हारे जो जीवन के एक एक जो तुमने अभी तक जो बात बताई है ना, अभी तक जो बात बताई, उसमें तो ये दिख रहा है कि मैं सारी वो चीजें कर रहा हूं जो मुझे नीचे की तरफ लेके जा रही है, और मैं रुक नहीं रहा हूं, है ना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे उसी समय बता देना, मैं मम्मी नहीं हूं तुम्हारी। ठीक है, मुझे बताना अगर मैं गलत समझ रही हूँ, क्योंकि दूर बैठे हैं तो हो सकता है गलत समझ रही हूँ। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कामों में अपने आप को लगा के रखूं जो पता भी है गलत है नहीं करने, तो मेरे जीवन को किसी ना किसी तरह से तो मुझे इशारा देना है ना, विक्रांत थम जा, विक्रांत थम जा। तो ये डिप्रेशन का रूप लेके आता है, वो बोलता है कि विक्रांत थम जा। विक्रांत नहीं थमने को तैयार। और जितनी मुसीबतें तूने विक्रांत तुमने गिनवाई हैं अपने जीवन में, इनको बहुत बड़ा मत समझ लेना। इसलिए मत समझ लेना कि बहुत सारे लोग और भी हैं जिनके जीवन में और भी जबरदस्त मुसीबतें हैं। 5 बार कैंसर हो गया, 10 बार कैंसर हो गया, जूझे जा रहे हैं, जूझे जा रहे हैं, लेकिन जूझ रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। समझ रहे हो विक्रांत? और जब हम रोते हैं ना, तो हम अपने अंदर के राम को कमजोर कर रहे होते हैं। राम कौन? तुम्हारी स्ट्रेंथ। रोने में तुम्हें मजा तो नहीं आ रहा होगा, सोच के देखो। किसी को नहीं आता है नहीं एक्चुअली। आता, बहुत सुंदर, नहीं आता। तो अगर मजा नहीं आ रहा है रोने में, तो वो मुझे क्या बता रहा है कि मैं इससे बेटर कुछ कर सकता हूं, रोने से बेटर भी मैं कुछ कर सकता हूं। बट ये भी तो हो सकता है कि रोने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि कुछ नहीं कर नहीं पा रहे हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है ना। तो देखो, ये आपने बहुत सुंदर बात करी। जब आदमी की क्षमता इतनी क्षीण हो जाती है कि उसको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करे, तभी आपका सिर झुकता है। आप क्या कहते हो? ऊपर वाले कुछ तो राह दिखा, है ना। इसको कहते हैं समर्पण, सरेंडर का पाथ। तो ये बहुत सुंदर आपके जीवन में हो रहा है जो मुझे दिख रहा है।
पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं, जो मुझे दिख पा रहा है, मेरे को ये दिख पा रहा है कि ईगो जो होती है हमारी, जो कहती है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, वो अपने घुटनों पे आ गई। वो क्या कह रही है, भैया मेरे बस का नहीं है, मेरे करे नहीं होगा, ठीक है। हेल्पलेसनेस फील हो रही है, और फिजिकल हेल्पलेसनेस भी फील हो रही है, जो आप बता रहे हैं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, ठीक है। अब बहुत सजदे ज्यादा। में हाथ उठ सकता है आपका। सजदा समझते हैं, प्रे करना। प्रे करना। अब सजदे में हाथ उठ सकता है कि मैं जीना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, तू राह दिखा। दिखती नहीं बट। दिखती नहीं, क्योंकि अभी सजदा पूरा नहीं हुआ है, अपने ऊपर ले रखा है अभी भी तुमने, ठीक है। तो हमारी जो आगे की स्थिति रहनी चाहिए ना, आप बिल्कुल, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं लग रहा, जो आपने सुनाया है ना वो बहुत सुंदर कहानी लग रही है मेरे को। आपको अभी जिस हेल्पलेसनेस से गुजर रहे हो, लोग पता है 80-80 90-90 साल के हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो इस हेल्पलेसनेस वाली स्टेट पे आ नहीं पाते एक जीवन में। उनको लगता है ये उनके लिए बड़ा अच्छा खुशहाल जीवन निकल गया, कि ईगो ने घुटने नहीं टेके, है ना। ऐसा ही लगता है ना, राइट। कि 80 साल हो गए, झुकना ही नहीं पड़ा किसी के सामने, वाह वाह, ऐसा ही लगता है। राइट। तो ये बहुत लेकिन बर्बादी वाली सिचुएशन है। आपके जीवन में वो सिचुएशन पहले ही आ गई है कि ओइंग टू द फिजिकल कंडीशन दैट यू हैव, उसकी वजह से हेल्पलेसनेस इतनी ज्यादा फील हो रही है कि अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो अब सजदे में आराम से हाथ उठ सकता है। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और वो बहुत गलत हो सकता है, अगर आपको नहीं ठीक लगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद आई विल आस्क एनीवन टू शेयर इफ दे हैव एनी रिफ्लेक्शंस। मुझे ये दिख रहा है, यू हैव टू ग्रो इन योर प्रेयर and get strength by doing what you like and by not doing what you don't like. This is how we gain strength. बार बार नाली में जाके मैं गिरती रहूंगी और बोलूं मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, मेरे में तो हिम्मत नहीं है, कोई मेरे को ही बेवकूफ बोलेगा, आके बोलेगा कि तू नाली में जा जाके गिरती क्यों है बार बार। तो अगर आपको दिख रहा है कि कुछ चीजें मेरे जीवन में ठीक नहीं हो रही है, मुझे वहां नहीं जाना है, हैव द करेज टू से नो। और मुझे पता है आपकी दुविधा क्या है, क्योंकि फिजिकली आप डिपेंडेंट फील करते हैं, आपको लगता है मैं नो कैसे बोलूं, ये लोग तो मेरा इतना हेल्प करते हैं, मैं नो कैसे बोलूं, है ना। मैं कह रही हूं, अगर सच्चा प्यार है उन रिलेशनशिप्स में, तो अगर सही बात पे आप अगर नो बोलेंगे, तब भी वो आपका ध्यान रखेंगे। आजमा के देखिए ना, थोड़ा सा आजमाना पड़ेगा, और हिम्मत ऐसे ही धीरे धीरे करके आएगी, गलत जगह पे नो बोल के, सही जगह पे हाँ करके। तो प्रेयर के साथ साथ आपके एक्शन भी प्रेयर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं और जब मम्मी गलत कुछ बोल रही है तो मम्मी को हाँ बोल रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। आपको कुछ हल्का सा बट पॉइंट समझ में आ रहा है? जी, बट क्या हो अगर सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है। आपने कभी मैं ट्राई कहता हूँ किया? कि नहीं। आपने कभी, कभी क्या मैं ट्राई कर करके थक चुका हूँ। तो कोई तभी तो नया मैं कुछ भी तरीका, बोलना बंद कर दिया है कि आप नया ये काम गलत। नया तरीका मिल भी जाता अगर मैं चल फिर सकता, कुछ नहीं मिलता मैम। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे कुछ ये उपाय या फिर कुछ विक्रांत, आइडिया लेने भी नहीं विक्रांत, आया कि विक्रांत, एक मिनट रुको, जी, रुको, थम जाओ बेटा, थम जाओ, थम जाओ। थमना सबके लिए अच्छा है, ठीक है। राइट। देखो, अगर जीना चाहते हो, अगर जीना चाहते हो सकता है तुम नहीं जीना चाहते, ठीक है। अगर जीना है, और इस जीवन का, चाहे वो हैंडीकैप आपको लग रहा है मेरे पास है, तब भी अगर आपने उस जीवन का कुछ इस्तेमाल करना है, तो समय ज्यादा खोना नहीं है रोने में। आपके रोने से आपकी एनर्जी कम होती है, आपके रोने से आप पेट्रोल वहां दे देते हो, आप अपने रावण को स्ट्रॉन्ग करते हो पेट्रोल दे दे के। अगर नहीं जीना है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हम सर्कल में ही क्यों आए हैं, सेशन में ही क्यों आए हैं। लेकिन अगर जीना सही है, है। अगर जीना है विक्रांत, तो हिम्मत आपको ही करनी पड़ेगी। आपकी तरफ से मैं भी कोई हिम्मत नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी जनाब नहीं हिम्मत कर पाएगा। मैं मानता हूँ ये बात, तो मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि चाहे जितनी भी मोटिवेशनल बातें कुछ भी कर लो, जब अंदर से ही आपके कुछ है नहीं तो फिर
कितना भी कोई भी कुछ भी कह ले, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पॉजिटिविटी के एनवायरनमेंट में आपको डाल दो, बट आपके अंदर ही इतनी सारी नेगेटिविटी है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ आता है मेरे को, आई गेट इट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल, आई एम गेटिंग इट। बस मेरे को लगता है सपोर्ट में कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना पर्सन, ना कुछ भी। ऐसा विक्रांत कोई सपोर्ट। बेटा जी। सुनो, जब आप इतनी ऐसी चीजों पे विचार करते हो, सपोर्ट में कुछ नहीं है, ना मम्मी साथ देती है, ना बहन साथ देती है, ना फाइनेंसिस साथ में है, जो भी करने चलता हूँ टूट जाता है, कैसा लगता है आपको ये बात करके? बड़ा आई फील सशक्त फील? लाइक आई फील लाइक डेथ शायद इससे अच्छा बहुत इजी लगता है। हाँ, लेकिन अभी तक मरे तो नहीं, अभी तक तो जिंदा हो ना। दैट्स द थिंग। या सो द हाँ जिंदा इसीलिए इतना सब कुछ सफर हो रहा है। हाँ, नहीं लेकिन अभी तक मरने की हिम्मत तो नहीं करी ना। नॉट येट। नॉट येट, ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब अभी जिंदगी है राइट। है। उसका क्या तुम्हें कुछ करना है, पहले तो ये डिसाइड कर लो। अभी मत करना, मेरे सामने मत करना अभी, जब सेशन ओवर हो जाए या बाद में थोड़ा टाइम मिले ना, तो पहले ये डिसाइड कर लेना मुझे जीना है कि नहीं। किसी ने फोर्स तो नहीं किया ना विक्रांत जियो, या कोई तुम्हें लेटर लिखता है? नो। नहीं किया, ठीक है। तो चाहते तो अभी तक जा भी चुके होते, लेकिन अभी तक नहीं गए, इसका मतलब जीना करेज, चाहते हो, कहीं ना कहीं जीना करेज इतना चाहते हो। नहीं है। करेज नहीं है, ठीक है। तो दो काम करना पड़ेगा। अगर इस ऐसा क्या हो रहा है अभी, एक पाव में नाव रखा हुआ है, एक नाव में एक पाव है, और दूसरी जो नाव है उसमें दूसरा पैव है, और इतना जो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो कि पता भी नहीं मरना है कि नहीं, पता भी नहीं जीना है कि नहीं, ठीक है। पहले तो ये डिसाइड कर लो जीना है कि नहीं। सुंदर हो देखने में, समझदार हो, ठीक है, इस जीवन का कुछ बना सकते हो अगर चाहो तो। ट्यूशन पढ़ाते हो बच्चों को तो समझते ही होगे बच्चों को भी, है ना। या और उस केस में आपको, अगर आप डिसाइड कर लो अच्छा मुझे जीना है, तो आपको ये जो सारा का सारा पेट्रोल, पेट्रोल मतलब अपनी सारी की सारी एनर्जी जो आप इन सारी चीजों को दे रहे हो, मैं और मेरी कहानी, उसको आपको इस कुछ ऐसी सार्थक जगह लगाना ही पड़ेगा जो आपको सशक्ति दे। नहीं तो आपको, और मैं इसलिए, देखो ये जो सर्कल होता है इसका नाम आपने गलती से पढ़ लिया वेंट आउट सर्कल। इस सर्कल का नाकाम वेंट आउट नहीं है, ये नहीं आके अपनी सारी भड़ास निकाल के चले गए। अदरवाइज बहुत लोग हैं, सुना लो जाके। ये सर्कल इसलिए है कि अगर आप सच्ची में जीना चाहते हैं, अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, तो आके बात करिए यहाँ पे, नहीं तो कोई यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है। मैं अपनी मम्मी की भी या नहीं सुनती, जब मम्मी फोन करती है ना मेरी, जी। मैं मम्मी की इधर उधर की बातें नहीं सुनती। कि जब तुमने बात समझनी ही नहीं है ना, और उसी रोने को रोते रहना है, रोते रहना है, रोते रहना है, तो फोन उठाने की जरूरत क्या है? अगर सही है। जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, आप बार बार आओ, हर सैटरडे आओ, हर संडे आओ, वी विल बी वेलकमिंग यू, वी विल बी कनेक्टिंग यू विद मोर पीपल who are like you and going through challenges and still surviving. लेकिन अगर रोने के लिए आना है ना विक्रांत, वो आप, मैं आपका साथ इसलिए नहीं दूंगी रोने में, क्योंकि रोना आपको कमजोर कर रहा है, और मैं चाहती नहीं कि इतना समझदार सुंदर सुशील लड़का रोता रहे। बहुत कैपेबिलिटी दिख रही है आपके अंदर, कोई मेरे को कमी नहीं दिख रही, अगर सिर्फ आप पांव को भूल जाओ तो, ठीक है। तो पहले आप या डिसाइड कर लो जीना है कि नहीं, और फिर आपको ये भी डिसीजन बार बार लेना पड़ेगा कि बार बार जो मेरी सारी एनर्जी इधर उधर की चीजों में जाती है, बार बार सोच विचारों में जाती है, मुझे उसको कहाँ सार्थक जगह डालना है। कोई जीवन आपका नहीं जिएगा, आप ही जियोगे अपना जीवन। सही है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो इस चीज पे। In the meantime, I'll invite other persons to share. Huh? Thank you so much, Vikrant. श्योर। Thank you. थैंक यू सो मच। So if anyone has reflections or anything, I'm sorry, I just went in the flow, could not stop in between. Anyone has anything, please feel free to share and unmute at any time.
Yeah, I would also, like to thank Vikrant for coming and sharing. And I have studied in the Institute for the Physically Handicapped for 5 years. Like I had studied a therapy course there. और जिन जिन कंडीशंस में जैसे जैसे लोग आते थे, मतलब काफ चाहे जितना भी इट्स लाइक हमें लगता है कि कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है, और इतना कुछ फिर भी होता है। मतलब टू हैव अ हाउस, टू हैव लाइक जैसे लाइक यू सेड दैट इंटेलिजेंस है ना, मतलब जैसे अब ट्यूशंस हैं, ये हैं, मतलब दैट मीन्स ब्रेन इज शार्प एंड द फैक्ट दैट ही यहाँ पे हैं, मतलब ही वांट्स टू कम, ही वांट्स टू शेयर, वो अपने में ही दैट मीन्स इट्स नॉट डेड येट, दैट अलाइव स्पिरिट, दैट वांटिंग टू लिव और डू बेटर और डू समथिंग। मतलब एक तरफ जैसे आप कह रहे हैं कि मैं थक चुका हूँ कर करके, बट मुझे ये लगता है कि अगर आप रियली में 100% थक चुके होते, तब आप ऐसी चीजों में नहीं आना चाहते। बिकॉज एक थका हुआ इंसान बस एक गिर के पड़ा रहता है, वो ये नहीं कहता कि ये देखो मेरा हाथ है, अगर बताओ मैं कहीं उठ सकूं तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली एक नेगेटिव उसमें, और एक सह सह के बंदा थक तो जाता है, बट जैसे कहते हैं ना, हारे हुए तो है ही, बट कोई हार आखिरी ना हो, लाइक दैट आपके में। बिकॉज कई बार ना खुद को नहीं दिखता है, तो जस्ट वांट टू कम्युनिकेट कि आपके में वो फाइटिंग स्पिरिट, खाली बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट जिस तरह से आपने सब कुछ रखा कि मैं ये करना चाहता हूँ, हाँ मेरे ये इंटरेस्ट हैं, बट मेरे को इश्यूज हैं, है ना, तो वो दिख रहा है कि अभी फाइटर नीचे पूरी तरह नहीं गिरा है, उसमें अभी और फाइटिंग गेम बची है। तब अगेन लाइक मोनिका वो शेयरिंग की, आप ही बता पाएंगे कैसे, बट अगर मतलब आई डोंट नो, अब ये तो और ऑब्वियसली या फिर इंडिविजुअल बात करके पता चलेगा कि क्या इशू होता है कि लोग नहीं करने देते, और वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं कभी अगर आप करना चाहें। बट कहीं ना कहीं तो हर जगह से है ना, जैसे एक होता है ना कि पहाड़ों को काट के पानी आ जाता है। अगेन सुनने में ये बात में भी थोड़ी सी पोएटिक लगे, बट वो प्रैक्टिकल है कि आता है, मतलब दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो कहीं से एनर्जी तो है ही, बट कहाँ पे वो चैनल होगी, कैसे हो सकती है, तो या मतलब, और लाइक अगेन ऑब्वियसली जैसे नेक डाउन पैरालिसिस के बारे में भी आपने सुना होगा, कि उसमें आप सोचिए कि अभी आप हाथ हिला पा रहे हैं, है ना, मतलब बॉडी का, अपर बॉडी का आपके पास है, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ नहीं भी है, और उसमें भी बहुत कुछ है, मतलब रूफ ओवर योर हेड, लाइक यू सेड कि जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो 13,000, 12-13,000 है, दैट मीन्स हाउस मोस्ट लाइकली आपको, है ना, मतलब रेंट वगैरह शायद आपको नहीं देना पड़ता होगा उतने में, तो वो भी एक अपने में देखिए कितना, मतलब वो भी देना पड़े तो वो कवर भी नहीं होते अभी, मतलब टू हैव दैट finances to be able to cover the expenses with the handicaps that you are mentioning, वो अपने में एक miracle है ना। मतलब आई डोंट वांट टू, आई डोंट नो, काइंड ऑफ शो अ वेरी रोजी थिंग, बट वो भी एक फैक्ट है लाइफ का, कि वो आप कर रहे हैं, इतना जो सक्षम आप हैं, जो ये पूरा एक घर चला रहे हैं, वो भी आप कर रहे हैं। तो अगर आप इस बात को माने, तो फिर आप जब डिस्कस करते हैं कि मुझे ये करना है, तो शायद उसमें भी एक वेट आता है कि देखिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ घर चलाने के लिए, और ये चीज मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, मतलब बट मुझे ये नहीं पता, हो सकता है आप ये कर चुकी हूँ, बट आई जस्ट होप कि ये बात आपको खुद को पता हो कि हाँ मैं इतना कर रहा हूँ। उससे ना अपने लिए भी एक सेल्फ लव और एक रिस्पेक्ट आता है कि देखो, हो सकता है कि मैं कुछ भी ना कर सकता, है ना, मतलब मैं बोलता मुझे नहीं करना, मैं तो आई हैव इश्यूज, और मैं कैसे सपोर्ट कर दूंगा, बट जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पिताजी के जाने के बाद यू वर एबल टू स्टैंड अप एंड से सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक इट ब्यूटिफुली, रन द फाइनेंसेस ऑफ योर हाउस, आप सब कुछ ये कर पा रहे हैं, तो इसमें काफी कुछ आप पहले ही कर रहे हैं, जो शायद आप पता नहीं खुद भी देख पा रहे हैं कि नहीं, बट देखिएगा जरूर कि आप काफी कुछ कर पा रहे हैं। बस आई गेस दैट्स इट फॉर मी। हाँ, Bikran ji, sorry, myself Rohul.
सॉरी, मैं आपका पहले का थोड़ा सा शायद अब मैं मिस कर गया। तो मतलब इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ यू नो वी एबल टू नो, मीन्स मतलब अगर आप एक एग्जांपल देते हैं, मतलब आपका मम्मी ऐसा क्या बोलती है जो आप करना नहीं चाहते हो बट आप करते हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल टू गेट द फ्लेवर, you know, we all understood you are feeling very suffocating at your current situation. Maybe आपके जो अभी सिचुएशन है उस हिसाब से आप जो भी कर रहे हो और जो भी फील कर रहे हो राइट भी हो सकता है, और राइट है तो आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, राइट? आप शायद ऐसा कुछ आप होप लेके आए हो, ऐसा कुछ आपको मिलेगा जो आपको राहत मिल सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए हम सभी जब खुद से बात करते हैं ऐसा टाइम आता है कि कोई रिस्पॉन्स रिजल्ट नहीं आता है, मतलब कोई मुझे हमें पता ही नहीं होता कि हमें एक्चुअली करना क्या है। सो इट्स अ गुड, मतलब आई रियली थैंक्स मनिका कि यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ सेशन, दैट इज वेरी ग्रेटफुल। सो मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आप एक एग्जांपल शेयर करें तो वो अच्छा होगा, मतलब एटलीस्ट मुझे आसानी होगा कि मतलब आप ऐसा क्यों सोचते हो, मतलब आपको करना नहीं है बट आप फिर भी कर रहे हो, तो अगर एक एग्जांपल दे तो अच्छा होता। द थिंग इज, जब भी मैं मॉम को कहता हूँ कि नहीं ये बात सही नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते, या आप ऐसे सोच नहीं सकते, या फिर आपको ये काम ऐसा करना चाहिए था जिससे आपको दिक्कत नहीं होती, आपको उल्टा उल्टा फायदा होता। शी नेवर अंडरस्टैंड सर। उल्टा वो कुछ कुछ के और बोल देंगी, कुछ और बोल देंगे, बट मुझे समझने की, मैं एक सिंपल लाइन में बोलूंगा तो मुझे समझती नहीं है वो। मैं सब उनके अच्छे के लिए कहता हूँ, ये करो, वो करो, एक्सरसाइज करो, ओके। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, 3 टाइम करो, आपके लिए फायदा है। नहीं, शी नेवर अंडरस्टैंड्स मी, शी नेवर लिसन्स टू मी। विक्रांत, थम जाओ। ओके। रूल एक या मिनट, रूल एक या मिनट। अच्छा, मैं फिर से एक, मुझे ना एक यहाँ पे डूडल लेना चाहिए, एक पोल लेना चाहिए बार बार। इफ आई टेक अ पोल ऑफ ऑल दीज पीपल हियर, 13 पीपल टोटल, एक भी नहीं होगा जो बोलेगा मेरे आसपास वाले मुझे पूरी तरह से समझते हैं। विक्रांत, ये आपके लिए, चाहे उनके पैर हैं, हाथ हैं या नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रही हूं, हम में से एक भी नहीं है जो ये बोलेगा कि मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे समझते हैं। ठीक है, तो वो गेम तो हमने खेलनी ही नहीं है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाने से हम वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हमने अपने जीवन को सार्थक दिशा में ले जाना है, चाहे कोई हमारा साथ दे, चाहे कोई नहीं दे। पत्थर को काट के क्या पानी निकालने की बात हो रही थी ना, बस। और हम सब में वो शक्ति है, हम सब में वो शक्ति है। आप ही के, आप जो बता रहे हो, कंडीशन बता रहे हो, तरुणा मेंशन दैट शी हैज seen even severe cases, right? People have run marathons even when they have no hands and legs. पॉसिबल तो बहुत कुछ है, इसका मतलब आप पढ़ा पा रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं इतनी समझदारी से, है ना? तो बार बार उन चीजों की तरफ जाना हमें रोकना पड़ेगा जो हमारी एनर्जीज को खा जाती हैं। मम्मी क्या समझती है मेरे बारे में, बेटी क्या समझती है, बहन क्या समझती है, वहां नहीं जाना। यह है रावण, वहां नहीं जाना। तो मुझे तुम्हारी डिटेल्स चाहिए ही नहीं, वो रूल ने मांग ली, लेकिन यहाँ पे सर्कल में नहीं चाहिए डिटेल्स, क्योंकि डिटेल्स में हम यही करते हैं, गोल गोल, ये मुझे नहीं समझता, ये मुझे नहीं समझता, ये मुझे नहीं समझता। हम सब में से सब एक दूसरे को नहीं समझते। चलो खुद को तो समझना शुरू करो। तुम समझ सकते हो ना अपने आप को, तुम सबसे ज्यादा करीब हो ना अपने, बस वहीं रहो, उसके आगे नहीं जाओ। उसके आगे हरण हो जाता है सीता का, रावण उठा के ले जाता है। ठीक है, तो हमने अपना ध्यान रखना है, हमने अपनी शांति का, अपनी शक्ति का ध्यान हमने खुद रखना है, कोई साथ नहीं देगा। अगर आज मैं बोलूं कि मैं आज यहाँ पे एक सेशन में बैठी हूं, हाँ, क्या मेरे पति इस बात को समझते हैं? मैं बोलूंगी नहीं समझते, फिर भी मैं बैठी हूं। क्यों बैठी हूं? जरूरी है मेरे लिए। अब क्या करूं, मैं रोऊं, है तू समझते क्यों नहीं, तुम्हें पता भी नहीं मैं कितना जरूरी काम, ये बोलूं?
क्यों लगाऊं वहां पे एनर्जीज? तो रोने को तो मैं भी रो सकती हूँ, रोने को मैं अभी रोना शुरू करूं, मेरे को कितनी बीमारियां हैं, रोने का कोई अंत नहीं है। रोगे अपनी एनर्जीज दे दोगे किसी को, देनी नहीं है एनर्जीज, अब बिल्कुल नहीं देनी। ठानना है तुम्हें, अपने में संकल्प लेना है, मुझे अपने लिए जीना है और एक ऐसा जीवन जीना है जो सुंदर हो, तुम उसके लिए केपेबल हो। ठीक है? तो कोई भी ध्यान आपका बार बार मन करेगा फिर उधर ही खिस जाऊं, क्योंकि आदत है ना पुरानी, सिगरेट उठाने की पुरानी आदत है। ठीक है? अब खाली होते हैं तो क्या करते हैं? अरे सिगरेट पी लेते हैं। सिगरेट क्या है आपकी? ऐसी बातों में जाना जो मुझे कमजोर करती हैं, ये आपकी सिगरेट बन गई, हम सबकी बन जाती है ना। हम सब ऐसा कुछ सोचने शुरू कर देते हैं जो हमें कमजोर बना देता है। जैसे ही आपका मन सिगरेट की तरफ जाने लगे, आप अपने आप को याद दिलाएं, ये एडिक्शन है विक्रांत, ये तेरे लिए सही नहीं है। सॉरी। अब तू 1 मिनट रूल, आपको मैं समय दूंगी, मौका दूंगी बोलने का। अगर मैं इस समय सिगरेट नहीं पीना चाहता क्योंकि मुझे लगता है वो मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मैं अपना समय कहाँ दूंगा? अब आपको उस खाली समय को सुंदर चीजों से भरना है। कोई और नहीं करेगा आपके लिए, ये कोई नहीं कर सकता। रूल बात करेगा, मैं बात करूंगी, कोई नहीं कर सकता। हम सिर्फ बात कर सकते हैं। काम आपने उठाना है, कदम आपने उठाना है। जीवन सुंदर या जीवन बर्बाद, ये आप बैठे हैं, बहुत दूर बैठे हैं, बेंगलोर में बैठे हैं ना, है ना। अब कैसे आए आपके पास बेंगलोर? आ भी गए तो तब भी नहीं हिला सकते आपको। काम आप ही करेंगे। तो राम को जो जगाना है आपके अंदर, वो आप ही जगाएंगे। कैसे जगाएंगे? रावण को फ्यूल देना बंद करेंगे, रावण को फ्यूल नहीं देंगे। जहां जहां आपको पता लग रहा है मेरी एनर्जीज खाई जा रही हैं, मैं सशक्त नहीं फील कर रहा हूं, कमजोर फील कर रहा हूं, उन बातों के बारे में बार बार नहीं सोचेंगे। दिमाग तो आप ही का है ना, तो उसको नियंत्रण में कौन लाएगा? आप लाएंगे। नियंत्रण में कैसे लाएंगे? ये समझ के कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर जीना है तो अच्छे से जीना शुरू करूंगा, चाहे जितना भी भगवान ने दिया है। ठीक है? हाँ रूहुल, आप बोलो, आप क्या कह रहे थे? नहीं देखिए, ऐसे ऊपर ऊपर सुन के डायरेक्टली सिर्फ ऐसा बोलना ठीक नहीं रहेगा, जितना मुझे लगता है। मे बी आई कैन बी रॉन्ग, बट द वे सेशन वाज गोइंग आई थॉट टू इंटरप्ट यू इन मिडिल। द थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हिज एक्चुअल प्रॉब्लम। देखिए, घर पे पेरेंट्स बहुत कुछ बोलते हैं, कभी कभी वो लोग राइट भी होते हैं, हम लोग रॉन्ग भी होते हैं, बट हमें लगता है कि वो रॉन्ग है। So we need to understand one thing, whether they are really wrong or I am wrong. Because हम लोग का ईगो बोलो या हम लोग का खुद का सूझबूझ ऐसा होता है, sometimes we do not try to understand them as well. Because पेरेंट्स के साथ हम लोग का एज गैप बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत तो एज गैप होता है, राइट? तो उसमें तो एक जनरेशन गैप का आ ही जाता है। तो उस टाइम ऐसा होता है, हम लोग समझ ही नहीं चाहते कि वो लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अगर मेरा खुद का मानना है कि वो लोग गलत है तो वो लोग गलत। तो when we are talking with someone else or some third party who don't know me or not neither my parents, so in situation में क्या है, we need to understand whether truly my parents are wrong or I am wrong. Okay, now we understood my parents are wrong. अगर मैं मुझे वो मतलब बता दिया हाँ ये है तो यू आर राइट, तो इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? इन दैट टाइम वी नीड टू try to focus our change to focus ourselves. Okay, my parents do like this, okay, do ignore them then. तो आप इग्नोर कैसे करोगे? आपको पहले वहां पे अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि जैसे विक्रांत ने भी बोला है, उनको अच्छा नहीं लगता फिर भी वो करते हैं। तो मतलब अगर मैं सोच लेता हूं कि मुझे करना ही है, तो मैं खुशी खुशी क्यों ना करूं? क्योंकि अगर आपको करना नहीं था तो आप पहले ही मना कर देते, तो आप पहले ही करते। शायद आपने वो ऑलरेडी ट्राई किया है, मतलब जितना आपको बातों से मुझे लगा कि आप ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में ट्राई करते करते थक गए, तो आप वो करना भी छोड़ दिए, राइट? तो अगर आपको लगता है कि आप सही हो, मतलब यहाँ पे मैं इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछा था, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब आपका पूरा हिस्ट्री सुनने में मुझे भी कुछ वो नहीं है,
but as you came to here for some sort of solution, so आपको solution मतलब आप यहाँ पे क्यों आए हो? So that you get some sort of guidance, okay, which will help you. नहीं So रोहल, ये एक्चुअली सॉल्यूशन या गाइडेंस के लिए हम यहाँ पे आए नहीं है, बिकॉज okay, आपने okay, कहा ना आपने शुरू में मिस करा है, दैट्स व्हाट विक्रांत जी आल्सो वेरी स्वीटली सेड कि वो भी कोई yeah, ही जस्ट वांटेड टू शेयर। और okay, जो आप बात कर रहे हैं ना, okay, okay, थोड़ा सा आई जस्ट वांट टू से कि देखिए, आप कह रहे हैं कि पहले सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह एनालाइज करिए, उसको समझें, दोनों पक्ष का देखें और फिर शांति की तरफ जाएं, है ना। गो टूवर्ड्स व्हाट गिव्स यू पीस एंड हैप्पीनेस, है ना, आपने यही बोला। और जो मोनिका कह रही है वो ये बोल रही है कि ये जो कीचड़ हो जाता है हम लोगों का, कि उसने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, उसने कहा, उसको छोड़ के भी हम सीधा उस पीस ऑफ माइंड या हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से ये जो एक वो है कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कोई भी रॉन्ग नहीं है, कोई भी राइट नहीं है, सब अपनी जगह पे ठीक ही होते हैं, है ना, कोई किसी के लिए बुरा ये नहीं बात करना आपने सही बोला, चाहता। correct. तो उस हिसाब से उस तरह जा, इट्स लाइक अगेन ऐसे ना, कीचड़ को उठा के उसमें देखें कि ये कीचड़ तो थोड़ा पतला है, ये कीचड़ तो थोड़ा सा मोटा है, उसका कोई फायदा ही नहीं होता हमेशा। तो अगर हम बस उस कीचड़ से ही हट सकें कि जो चीज हमें नीचे लेके जा रही है उसी से हम एक थोड़ा सा स्टेप बैक कर सकें, तो खुद ही इतनी ताकत आ जाती है कि वी आर फ्री टू move in a direction which gives us less stress and maybe a bit of peace. So I guess ये conversation अब अच्छा 9 बज गए हैं, तो हम्म, यहाँ पे करते हैं। और obviously विक्रांत जी is welcome to reflect or share again, but I think now we would like to open, अगर किसी और को कुछ शेयर करना है या कमेंट करना है। थैंक यू सो मच राहुल जी। okay, thank you. Thank you. तो हमने कीचड़ में ही कमल उगाना है, जो अभी तरु कह रही थी ना, कीचड़ के होने के बावजूद भी हमें कमल उगाना है। तो इसलिए हम एज तरु वाज शेयरिंग, कीचड़ का विश्लेषण नहीं करेंगे, हम ऐसी शक्ति लाएंगे अपने अंदर, और हम सब कीचड़ में हैं, किसी ना किसी कीचड़ में हम सब हैं। यही मैं विक्रांत को बार बार बताना चाह रही थी कि ऐसा मत सोचना कि जिनके पास हाथ पैर पूरे हैं वो कीचड़ में नहीं है। एंड तरु शेयर्ड दिस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ कीचड़, हम सबके जीवन में कीचड़ है, लेकिन हम उसको बहाना नहीं बनाएंगे कि मैं जीवन कैसे जीऊं, कीचड़ है। अरे उसको नर्चर बना लो, उसी को अपना खाना बना लो और उगो उसके अंदर से। कीचड़ के खत्म होने का इंतजार नहीं करना कि कब मेरी मम्मी मेरे को समझना शुरू करेंगी, ना, अरे मम्मी ना समझे, मैं अपना जीवन बचा लूं, जितना बचा हुआ है उतना तो सुंदर जी लूं। दैट इज व्हाट इज कमल, है ना, कीचड़ में कमल। तो हम सबने वही करना है, हमको अपने अंदर वो शक्ति लानी है कि हम कीचड़ में रहते हुए कीचड़ का उपयोग करके हम कमल बन पाए। और हम सब में वो शक्ति है, हम सब में है वो शक्ति, चाहे हमारे हाथ पूरे हैं, पैर पूरे हैं, कोई डिजीज है, बीमारी है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे आगे बढ़ना है। एक आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, आत्मा के हाथ पैर नहीं होते, आत्मा बस सशक्त होती है। दैट इज द स्ट्रेंथ दैट वी हैव टू गेट इन टच विद। So please, anyone who wants to reflect upon, yes Priyanka, please share. एक बीच में बात विक्रांत ने कही थी कि मैं अभी इतना घूमा फिरा भी नहीं, मैंने जीवन के अनुभव भी नहीं किए। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा एग्जाम्पल बहुत सटीक है, पर बस मैं ये शेयर करना चाहती हूँ विक्रांत आपके साथ। मेरी आयु 40 वर्ष से ऊपर है। शायद मैंने बहुत सारे देश विदेश घूमे हैं, अपने जॉब में भी बहुत कामयाबी रही, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में बहुत लोकप्रिय या प्यार, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। पर मेरी जिंदगी इस टाइम एक पूरा फुल सर्कल लेकर वापस आ गई है। और मैं अब जब मैं ये शेयर करना चाहूंगी आपके साथ जरूर कि जब मैं 30 साल का मेरा अपने मैं जन्मदिन मना रही थी अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने ये सोचा था कि अब इतनी खूबसूरत जिंदगी है, जो सो कॉल्ड टिक बॉक्सेस होते हैं सारे मैंने टिक कर लिए हैं। घर खरीद लिया है, लोन चुका दिया है, 2 लंबी गाड़ी हैं, उसका भी लोन खत्म कर दिया है। अब हम देश विदेश घूम लिए हैं, बहुत बढ़िया नौकरी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। अब मैं बस 10 साल और काम करूंगी और बहुत खुशहाल बढ़िया जीवन मेरा रहेगा। और अब
मैं प्लान करूंगी जब सब कुछ है मेरे पास एट पीस, नाउ वी विल प्लान अ फैमिली, अब हम अपनी जीवन आगे शुरू करेंगे। मैंने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था अपने हिसाब से, सब कुछ किया भी था, बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, सब कुछ पीछे छोड़कर मेहनत करी, क्योंकि ये सारे टिक करने थे मुझे बॉक्सेस। बट भगवान का तो कुछ और ही प्लान था मेरे लिए। उसके बाद बहुत डिफिकल्टीज हुई और बहुत ज्यादा परेशानी, मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगी। बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स के बाद मुझे मेरी प्यारी सी एक बच्ची मिली, और अब वो 7 साल की है। लेकिन प्रॉब्लम्स वहां भी खत्म नहीं हुई। उसके बाद और बड़ी प्रॉब्लम्स आई, जो मैं सोचती थी कि बहुत अच्छी जिंदगी है मॉनेटरी टर्म्स पे, रिलेशनशिप टर्म्स पे, एक अपने जीवन साथी के साथ, या सपोर्ट, जो हम सो कॉल्ड सपोर्ट एक फ्रेंड्स में, जो हमें बहुत ना सशक्त फील कराते हैं, या अपने कोलीग्स होते हैं, हमें लगता है वो हम इनमें इनमें लोकप्रिय हैं, तो हाँ हम बहुत वी हैव लॉट ऑफ पावर, हम बहुत ज्यादा सशक्त हैं। सब कुछ छूट जाता है। मैं ये बताना चाहती हूँ, सब कुछ आप कर भी ले जिंदगी में, लेकिन लाइफ कम्स टू अ फुल सर्कल फॉर लॉट ऑफ पीपल, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। मेरे दिमाग में भी बहुत डाउट्स आए पिछले 6-8 महीने में कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। मतलब मैंने तो सब कुछ ठीक ही किया, सब कुछ ठीक ही रहा, और अब मैं वापस वहीं पर आ गई हूँ जहां से मुझे शुरू करना है। और इस प्लेटफॉर्म पे आकर मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ओपनली शेयर करते हैं सब कुछ, बिकॉज हम लोग एक दूसरे को जज नहीं कर रहे हैं। चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप के टर्म्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, काम से रिलेटेड हो। मैं अगर मैं कैलकुलेट करूं उस हिसाब से, तो मैं शायद 15 साल पीछे पहुंच गई हूँ, हर तरीके से, हर तरीके से। और इमोशनली ड्रेन हो चुकी हूँ। लगता है कि और कितनी मेहनत, अब फिर से शुरू करूं। जब मैंने सोचा था कि अब तो मैं आराम करूंगी, बहुत बढ़िया जिंदगी होगी, सब कुछ होगा। तो लाइफ, मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी तो ऐसे ही चलती है, सबकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, सबके अपने चैलेंजेस हैं, सबके अपने दुख हैं। बट हमें तो उसी से एनर्जी लेनी है जो हमारे आसपास है, और जो पॉजिटिव है, और जो करके अच्छा लगे। जिस चीज से आपको, मतलब मैंने अपने लिए चूज किया कि जिस चीज के साथ रहकर या जुड़कर मुझे लगता था कि मैं अपनी एनर्जी ड्रेन कर रही हूँ, उसमें टाइम और अपनी एनर्जी बिल्कुल व्यर्थ ना करें। समय और अपनी क्षमता जो भी है और दूसरे काम में लगाएं, और जीवन बहुत खूबसूरत है। मेरे भी मोमेंट्स होते हैं, मुझे रोकर बहुत अच्छा लगता है। जो बीच में बात हो रही थी कि रोना आता है पर एनर्जी ड्रेन, मुझे तो बहुत लाइट फील होता है रोने के बाद, बड़ा हाँ अच्छा सा फील होता है कि ओके आई एम फीलिंग लाइट। इट वर्क्स समटाइम्स, बट यस यू आल्सो ड्रेन अ लॉट ऑफ एनर्जी। बट सबकी जिंदगी बहुत चैलेंजेस के साथ है, एंड इट्स इवन मोर फ्रस्ट्रेटिंग। मुझे ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि सब कुछ करके वापस वहीं, तो कहाँ पहुंचे हम लाइफ में। बट दीज आर द आंसर्स ईच वन हैज टू फाइंड फॉर देमसेल्व्स। हम सबको खुद ही ढूंढने हैं, और इन्हीं सब चीजों से एनर्जी लेनी है और आगे बढ़ते चलना है। Thanks. Thank you so much, Priyanka, for sharing so honestly, and bravely कि कुछ भी ठीक होने का, सब कुछ ठीक होने का वेट नहीं करना। जो अभी है हाथ में, उसका बढ़िया से बढ़िया उपयोग करना है ना। ये हमारे चैलेंज हमारे सामने है। दिस इज द चैलेंज। क्योंकि कुछ भी जो बाकी सब है, वही हमको, देखो हमको लगता है कि वो सब ठीक हो जाएगा तब मैं उठूंगा, है ना। जबकि हमें पता नहीं लग रहा कि वो सब इसीलिए गड़बड़ है ताकि तुम उठ पाओ। क्योंकि उसका गड़बड़ होना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, है ना। मेरी माँ ठीक नहीं है, मेरे फाइनेंसिस ठीक नहीं है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिंदगी इतनी कुरूप कैसे हो सकती है। तो अब ये जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये मुझे रोने के बजाय मुझे शक्ति देना चाहिए
कि हम्म, मेरे से इतना गंदा जीवन बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो क्या हम इसको विशियस लूप ऑफ थॉट्स की जगह, बार बार मैं और मेरी कहानी की जगह, क्या मैं एक अपनी कहानी की तरफ लेके जा सकता हूँ? ये हमारा चैलेंज है। और वो हमको जो लग रहा है ना कि जो बाहर बन के बैठा है मेरा विरोधी, वो विरोधी आपको शक्ति दे रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा वो। आप देखो ना, जैसे जिम में करने जाते हैं, जिम में सामने जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है दीवार पे या वेट में, उतनी ही ज्यादा शक्ति मैं अपनी मसल्स की यूज कर पाती हूँ। तो ऐसा लग रहा है उसमें कितनी विरोधी है वो वॉल जो मेरे सामने है, कितनी ज्यादा हार्ड है, लेकिन उसके हार्ड होने से मेरे मसल्स में स्ट्रेंथ आ रही है। दिस इज द ब्यूटी दैट इज हैपनिंग। तो हमने यही करना है, हमने आसपास की विरोधी शक्तियों से ताकत लेके, क्योंकि वो हमारे सामने जब तक खड़ी है, हमारा हमको लगेगा कि इतना गंदा सहन नहीं हो रहा, उठो उठो, कुछ करो जीवन का, ये हमको करना है उसका उपयोग। अगर हमने डिसाइड किया है कि मुझे जीना है, पहले तो मैं वही कह रही थी कि हम पहले डिसाइड करें कि मुझे जीना है कि नहीं जीना है, और अगर जीना है तो किस तरह खूबसूरती से जीना है, क्योंकि खूबसूरती सबको आप में दिख रही है, हम सब में दिख रही है। हम में से कोई भी एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कुरूप है, और ये हमारी आत्मा की खूबसूरती होती है जो निकल के बाहर आती है ना। वी ऑल हैव इनहेरेंट स्ट्रेंथ। नाउ द फोकस somehow in our life sometimes goes to things which are draining into energies, and then we find ourselves stuck कि आगे चला नहीं जा रहा। अब हमें देखना है कि उनको छोड़ के अब मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। हमारे मुंह पे लिखा है कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है, ठीक है। बनाना, वो हमें मजा 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 आएगा बनाने में। जीवन जब सुंदर करते हैं ना, अब एक छोटा बच्चा कुछ क्ले से बना रहा है, कुछ मिट्टी से बना रहा है, उसको बहुत अच्छा लगता है बनाने में। तो जब हम अपना खुद का जीवन बनाना शुरू करते हैं, कुछ सुंदर रूप उसे देना शुरू करते हैं, उस प्रक्रिया में बड़ा मजा आता है, उस प्रोसेस में बड़ा मजा आता है कि इतना सब कुछ बेकार होते हुए भी मैं अपने जीवन को एक सुंदर रूप दे पा रहा हूं। तो लेट अस डू इट फॉर द सेक ऑफ फन, लेट अस डू इट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट एंड प्रोग्रेस। नो, मजा बहुत है। एक बार आप चलना शुरू करेंगे ना इस पाथ पे, बहुत मजा आएगा, और खूब सारे लोग आपके तरीके के जुड़ते जाएंगे, जो आपको, आप उसको शक्ति दे रहे हैं, वो आपको शक्ति दे रहा है, राइट। ये मोनिका आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये मैंने भी अनुभव किया है कि जो हमारा माइंडसेट होता है, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हमें उस तरीके की सराउंडिंग्स और लोग और विचार मिलने लगते हैं। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हमें घर के पर्दे बदलने हैं, तो हर जगह पर्दे ही दिखाई देते हैं। आप किसी के घर जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, मार्केट में जाएं, मॉल में जाएं, यू टेंड टू सी दोज थिंग्स, और बिकॉज दीज आर ऑल योर थॉट्स। तो और बस मैं लास्ट नोट पे यही कहूंगी। या प्रियंका, यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ, लास्ट नोट आपका सुनाई नहीं दिया। सॉरी, इज आई एम ऑडिबल नाउ? हाँ, मैं बस लास्ट नोट पे यही कहना चाहूंगी दैट विक्रांत इज सो हैंडसम। He's put his video on, and while he's talking, I've been looking at him, and he communicates so well. And बहुत बड़ी strength है communication. आप अपनी बात, अपनी जो भी है कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि हर चीज में communication plays a very very important role. So I will end here with a compliment for you, Vikrant, and I think it was a very good session for me, and I'll just mute myself here. Thank you. Thank you so much, Priyanka, for sharing. Yeah. Would anyone else? Yeah. There's one small thing I wanted to put across. विक्रांत बेटा, आप हैंडसम हो ठीक है, पर the very fact that you are teaching and imparting knowledge to children who need it, to people who need it, is a very big thing in itself. That means you are capable of giving and doing for others and rising above your aapki jo whatever disabilities or whatever it may be. You are capable कि आप उससे ऊपर उठ के
आप कर सकते हो, सिर्फ आप उसको टैप नहीं कर रहे हो। आप टैप कीजिए, आप अपने अंदर जाइए और सोचो कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी, मैं वो करूंगा। जैसे आपने टीचिंग लिया, वैसे आप कुछ और लीजिए। मुझे जब कुछ मुश्किलें आई, मैं पेंटिंग में चली गई। मैंने कहा कि मैं यमराज से झगड़ूंगी, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने उसको कहा जा तू, और मैं पेंट करने लगी, एंड आई कुड मास्टर इट। Every technique I mastered quietly online with all my duties as a wife and a mother. इंसान को जब मैं ऑलमोस्ट चल बसी थी, एक इंस्टेंस में मैंने एक ही चीज भगवान से पूछी, Why did you save me? I was supposed to have gone. Why did you save me? What is your motive? And the only answer I got is, search the motive and go ahead, don't stop. आपका कोई भी, जो भी, whatever gives you joy, जिस चीज से खुशी होगी, आप उसके लिए वक्त समय ढूंढ के निकालिए अपने रूटीन में से, और वो कीजिएगा। और वही आप देखेंगे कि वो जो समय आपको मिलता है, वही आपके जिंदगी का मकसद बन जाएगा। और क्या हो अगर हम उसके लिए समय निकाले, ये नहीं कि मैंने नहीं निकाला, ये निकाला है तो मुझे अच्छा लगता है, वो करने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ। क्या हो अगर वो जब करने की कोशिश करें और आपको फिर से खींच के कोई नीचे लेके आ जाए? अब जो इंसान आपको नीचे खींचे, आप उसको वो चांस मत दीजिए कि वो आपको खींच सके। आपको इतना फर्म होना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये करना ही है। आपका मकसद इतना दृढ़ होना पड़ता है कि आप वो कीजिएगा ही। मैं 63 की हूँ, मैं 63 साल की हूँ, और मैंने इस लास्ट 1 साल में मैंने वाटर कलर पेंटिंग सीखी है। आप सोच सकते हो, मैंने निश्चय किया कि मैं सीखूंगी, और मैं दूसरे लोगों को भी उससे खुशी दूंगी। घर में सबने कहा नहीं, तुम फिर हर वक्त वही चीज सोचती हो, बहुत डिस्टरबेंस है घर में, ये वो। मैंने पूरा डाइनिंग रूम ले लिया, गुस्सा, झगड़ा। मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना है। मैंने किया, और आज आई एम अ मच बेटर ह्यूमन बीइंग। इंसानी तौर पे एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के, आई एम मच बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज आई डिड इट। और उससे जो खुशी मिली, जो मुझे उत्तर मिले कि नहीं, इससे सुख, अंदरूनी सुख, शांति, ह्यूमिलिटी, इतनी अच्छाई आई कि मुझे उसके बाद में सबने टोकना बंद कर दिया। बेटा, कोई नहीं टोकता। अभी वो अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, इससे तो बहुत फर्क पड़ा। तो कभी कभी हमको दृढ़ रहना पड़ता है। वी हैव टू बी अ लिटिल फर्म। किसी को पसंद ना आए, हर बार सबकी नहीं सोचते बेटा। कभी कभी आप अपना सोचिए कि मैं जीना चाहता हूं अपने तौर पे। एंड द फैक्ट दैट यू आर एबल टू इम्पार्ट नॉलेज टू पीपल, उसका मतलब है कि आप में बहुत कुछ और है, which you are underestimating yourself. So go ahead and tap into it like Monica and Taru said. Yeah. आपने सही Think कहा, मैं अंडर what we एस्टिमेट are तो saying. करता हूँ। द थिंग इज, बाहर निकलता ही नहीं, निकल ही नहीं सकता। ये नहीं कि मुझे No, नहीं निकलना, no, it's not that बस मुझे नहीं नहीं होता। निकलना, it's that मैं निकलूंगा। मुझे क्यों जिंदा रखा भगवान ने? इसी वजह से कि there must be some reason for you to survive. And why Right. not survive it king size? Yeah. That's the best way. Think about it. Relative. You don't have to answer now. अभी कुछ just think कि क्या conversation हुआ, मोनिका ने क्या कहा, तरू ने क्या कहा, हम क्यों कह रहे थे, and Yeah, I'm gonna do that. yeah, and like everybody gave you their inputs. I am revealing
to you 1/100th of my life. But so many events taught me that I must survive. I cannot go. Okay? Yeah. Think about it. I'll do. Sure. Thank you for sharing, Jyotsna ji. Anyone else? Anyone else would like to share? I would like to add at the last moment two things. बट जोशना जी वन थिंग आपने बहुत सही बताया कि क्वेश्चंस का जो आंसर ना वो मतलब हम सबका अंदर से मिलता है, वो बाहर ढूंढने से नहीं मिलता है. तो या मैं भी मतलब मैं खुद से एक्सपीरियंस किया हूँ, मतलब सेम थिंग. सो मैं वही चीज विक्रांत मैं आपको भी बोलूंगा, आप भी ना खुद से मतलब वो सवाल खुद मतलब बाहर आंसर ना ढूंढिए, क्योंकि ऐसे जैसे बोल रहे थे ना कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता. तो आप ना आप खुद ही कैपेबल हो, आपको लग रहा है आपका फिजिकल कॉन्स्टेंस की वजह से आपको ऐसा लग रहा है, बट बहुत सारा मतलब जैसा ऑलरेडी मोनिका जी ने ऑलरेडी शेयर किया है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव किए हैं. तो आप ना आपको वो जो फिजिकल जो एस्पेक्ट है उसको आप छोड़ दीजिए और आप अपने आप को ज्यादा टाइम दीजिए और खुद के अंदर आप सवाल कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा. ये एक थिंग है. और दूसरा थिंग ये है, आप मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत नेगेटिव है, मतलब वो एक मतलब अगर कोई भी अगर वैसे बॉडी लैंग्वेज में रहेगा तो ही विल बी ऑलवेज डिप्रेशन. ओके, सो ये बेटर होगा. दो चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मतलब एक्चुअली मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ, वैसे कुछ नहीं, मैं कुछ टॉक से सुना हूँ या कुछ मतलब कहीं पे मैं सुना हूँ, खुद के अप्लाई किया हूँ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. एक है आप स्ट्रेट रहने का ट्राई कीजिए, ये एक थिंग है. और दूसरा है Ruhul, just a second. या I'm so sorry. I have to stop you here. This session is not for such kind of things at all. ओके And whatever has been shared so far has been really very, very beautiful for Vikrant and for all of us. So I would ask you to just give it a pause here. And this is just not the vision of the session. It's not in line with the vision of the session. And that's why I need to stop you here. थैंक यू. Yeah. Thank you for understanding. Yeah. So I would like to invite Shweta and Irfan, Shilpi, and Rishabh and Snehi, who have not spoken so far. We may have 10 to 15 minutes more. If you would like to share anything, not on the same thing, if you have anything that you came here for today, you want to share, reflect upon anything, you're most welcome to do that. Yes, Shilpi. I was in the session around midway, but I really liked this exchange very much so. And Monica, I liked the I liked your basic question ना कि A या B पहले ये choose करना है, A चाहिए या B चाहिए. And you know what everybody was saying, I felt like there's so many different windows to look at the same thing. And because of late I have been looking at things, trying to look at things a little bit from what Prakriti does to us and what we really are, you know. And I was just reflecting that so much of this so-called struggle that we have is so much of patterns and so much of repetition of the same thing over and over. And I almost felt like it's a birthing process कि मतलब हमारा जन्म कब होगा, इन सब चीजों से, ये सब जो भसड़ है इससे निकल के हमारा जन्म कब होगा. I almost felt like that, but really excellent reflection from everybody. Thank you. Beautiful. Thank you for sharing, Shilpi. So
the session today has been organized by Living Light. हाँ, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, लिटिल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है लिविंग लाइट. अब क्यों मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि हमें बर्डन कैरी करके जीने की किसी ने भी फोर्स नहीं किया कि मुझे बर्डन कैरी करके जीना है. किसी ने भी नहीं फोर्स किया. वी हैव ईच मोमेंट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, वी हैव अ चॉइस. क्या मैं इस बर्डन को कैरी करूं या जीवन जीऊं? क्या मैं इस बर्डन को कैरी करूं या जीवन जीऊं? हर एक पल हमें एक ये चॉइस करनी होती है. जो शिल्पी शेयर कर रही थी अभी कि हमारी जो वृत्तियां हैं, जो टेंडेंसीज है, जो बार बार एक ही चीज हम पैटर्न में, लूप में एक ही तरीके से सोचते हैं, वो हमें ऐसा लगता है जीने नहीं देती. क्योंकि बार बार दिमाग बर्डन में चला जाता है, बार बार बर्डन में चला जाता है, बार बार बर्डन में चला जाता है. यहाँ हमारा चैलेंज है. चैलेंज क्या है? अगर मुझे जिंदगी जीनी है, अगर मुझे जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, तो हर बार मुझे बर्डन को बोलना है नो, और लाइटनेस को बोलना है हाँ. लिविंग लाइट. हमारे ही हाथ में वो चाबी है, किसी के हाथ में वो चाबी नहीं है. मेरे जीवन की चाबी मेरे हाथ में, तुम्हारे जीवन की तुम्हारे हाथ में. बर्डन सबकी जीवन में है, ये हमें दिख गया आज, सबने इतना अच्छे से शेयर किया. बर्डन सबके जीवन में है. हर मोमेंट में मुझे ये डिसाइड करना है वेदर आई वांट टू कैरी द बर्डन और वेदर आई वांट टू लिव लाइट. ये है हमारा चैलेंज जो शिल्पी वाज शेयरिंग, टू गिव बर्थ टू अवर सेल्व्स ईच मोमेंट. ये हमारा चैलेंज है, और ये सिर्फ एक जने का चैलेंज नहीं है. बिलियंस ऑफ अस आर विद दिस चैलेंज. इसी के लिए हम यहाँ पे हैं. हाँ, सो ये बहुत, आई वुड रियली लाइक टू thank everyone, each and everyone who shared today, and especially Vikrant, because we started with your sharing and how beautifully, courageously you have shared today. I think if this is not strength, I don't know what is strength. If this is not strength, right? This is strength, and we have to focus on strength so that all the weakness is just like our nurture. It becomes our nurture and is transformed to more and more strength. So let us call it a day. Those of us who want to be in touch, who have joined us for the first time, can drop their numbers in the chat window. जो भी आगे अपडेटेड रहना चाहते हैं सेशंस के बारे में. कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनको वापस ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है. तो वी विल कीप शेयरिंग अवर न्यू सेशंस विद यू, वेयर मोर पीपल हु हैव the courage to share honestly are here in these sessions, and we share and reflect and grow together. Okay, anything else? If anyone has 1 or 2 minutes, please share. And then Monica, I have a Yeah. little something that came to me when you were sharing कि जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो उसमें पीछे को थोड़ा पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है. कि पीछे की लाश को हम सर पे रख के हम आगे कभी बढ़ नहीं सकते. मतलब अगर मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा है कि मैं बहुत कर चुका हूँ और आगे कुछ पॉसिबल ही नहीं है. एंड दिस इज़ नॉट एक जने की स्टोरी है ना, ये हम सबकी स्टोरी है. तो इवन मैंने एक बार एक पेन पे एक टॉक सुना था, और उसमें ये था कि जब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, तो उसमें अगर हम देखें कि ये मुझे पेन हो रहा है और इस टाइम पे हो रहा है, क्या मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ? क्या मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ? तो 100% हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं. मगर अगर हम यहाँ जाएँ कि अरे हे भगवान! ये मेरे साथ 15 बार पहले हो चुका है और मेरे से ना और हो नहीं रहा, मतलब मैं अपना मैक्सिमम दे चुका हूँ, मेरे को तो ज़िंदगी मार ही देगी, इससे अच्छा तो डेथ इज़ बेटर देन सो मच पेन. तब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा एंड आई विल गिव अप. तो एज़ इन क्योंकि लिए ज़िंदगी हमेशा एक नई हो सकती है, न्यू. तो हमें अगर उसको थोड़ा-सा अगर हम एक नई रिज़ॉल्व मतलब इट्स लाइक या तो मतलब अगर एक नई तरीके से अगर हम देख सके कि हाँ, मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, बट अगर मुझे अभी भी ये मेरे अंदर इट्स स्टिल अलाइव दैट आई वांट टू डू दिस गिव मी हैप्पीनेस, दिस डजंट गिव मी हैप्पीनेस. तो अगर मैं उसको करने जाऊँ और इसी उस पे जाऊँ कि मैं तो मगर बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, फिर तो नहीं पॉसिबल होगा. कहीं पे मुझे वो पास्ट को ड्रॉप करना ही पड़ेगा और बोलना पड़ेगा हाँ, एक और ट्राई. जैसे कई बार चींटी है ना, जैसे जब ऊपर चढ़ रही होती है वॉल पे और वो गिरती जाती, इतनी छोटी चींटी, इतनी बड़ी वॉल, एंड फाइनली आफ्टर आवर्स एट टाइम्स वी सी कि हाँ, शी मेड इट, है ना. मतलब
ऐसे बहुत सारे नेचर में एग्जाम्पल्स हैं, तो वो थोड़ा सा करना पड़ेगा इफ वी वांट टू एक्चुअली मूव अहेड. थैंक यू. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. और ये जो संकल्प है ना आगे बढ़ने का, जिसकी तरु ने बात करी, ये हम सबको हर मोमेंट में लेना होता है. ये ऐसा एक संकल्प नहीं है जो एक बार ले लिया और फिर से भूत आएगा नहीं. भूत बार बार आएगा. भूत बार बार पीछे पड़ेगा, लेकिन हर मोमेंट मुझे संकल्प भी लेना है, क्यों भाई मुझे तो जीना है, मुझे तो जीना है. हाँ, इस समय फिर से आ गया भूतकाल, अरे भाई मुझे तो जीना है. सो एवरी मोमेंट दिस न्यू संकल्प हैज टू बी देयर, है ना. इवन जो इस जर्नी पे बहुत सालों से भी है ना, अगर आप उनसे भी बात करें, हम सब उनसे बात करें, तो वो भी बोलेंगे कि ये तो हर मोमेंट का संकल्प है. एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट. तो ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी. कहानी बहुत लंबी है ना, लेकिन उसमें हमने मजे लेने शुरू करने हैं. या so thank you everyone. Thank you Taru, thank you for the beautiful point. Everyone, thanks for sharing and thanks for being here. Thank you. Bye. Sir, yeah, bye. Thanks.